Welcome in today, my dear student and parents. Listen with carefully. आइए आज को और खुद को बेहतर बनाएं. Because you know already, जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं. जिंदगी वैसी होती जैसा हम बनाते हैं. ऊंची सी तरह फकीर ने कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी. कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी कि मुट्ठी में मीठ लेकर की मुट्ठी में मीठ लेकर हवा में उछाल दी. It's mean life is in your hand. जिंदगी आपके हाथ में है. चाहे तो इसको आबाद कर दो या फिर बर्बाद कर दो. जैसे एक मिट्टी को मुट्ठी में लेकर कितना आसान है उसे बिखेर देना, बर्बाद कर देना. लेकिन उसी मिट्टी को लेकर एक नए खूबसूरत में ढाल देना, उसको नए चीजें की आविष्कार कर देना, उसमें कितना वक्त लगेगा, कितना सोचना पड़ेगा, कितना राय मशवरे लेने पड़ेंगे. बनाने में वक्त लगता है. सेम उसी तरह आप चाहें तो अपनी लाइफ को बर्बाद कर दें या तो अपनी लाइफ को सजा के ईमान से बेहतर बना लें. लेकिन हाउ कैन पॉसिबल इट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और कौन कर सकता है? यकीनन कर सकते हैं. कौन? जो समझदार हो, जो रब की बताए हुए नक्शे कदम पे चलता हो और जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया हो उससे मान जाता हो, वही लोग आज भी चर्चे में रहेंगे और दुनिया से जाने के बाद भी चर्चे में रहेंगे. तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं जो कौन सी चीज है, कौन सी ताकत है जो एक फैमिली को खुश रहने के लिए जरूरी होता है, एक दोस्ती निभाने के लिए भी जरूरी होता है, एक अपनापन एहसास दिलाने के लिए भी जरूरी होता है, घर को मेंटेन और खुशहाल रखने के लिए भी जरूरी होता है. वो कौन सी चीज? अगर वो चीज आपकी जिंदगी से निकल जाएगी तो आप अपने आप को हैप्पी कभी नहीं पा सकते और अपने फैमिली को भी आप हैप्पी नहीं रख सकते. कौन सी चीज? एल क्यूब. लिव जिंदगी चाहते हैं तो लाफ, हंसना या मुस्कुराना सीखें. अगर जिंदगी चाहते हैं खूबसूरत हो तो लाफ, हंसना या मुस्कुराना सीखें. हंसना या मुस्कुराना चाहते हैं तो लव, प्रेम करना सीखें. प्रेम करना सीखें, लव करना सीखें. लेकिन लव कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे? और यकीनन मान चलिए
اگر آپ فیملی سے، اپنے ممبر سے، اپنے پیرنٹس سے لو کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، تو اس کی بھی ایک کوالٹی ہے، اس کی بھی ایک پہچان ہے، جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملے گا اور آپ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، اور رب بھی آپ سے خوش ہوگا، اور آپ کی ہر مصیبت آٹومیٹک دور ہو جائے گی۔ کون سی چیز؟ لو۔ ہاں، اگر آپ فیملی ممبر سے اور دوسرے سے لو کرنے سے پہلے آپ خود سے لو کرنا سیکھیں۔ فیملی سے لو کرنے سے پہلے آپ خود سے لو کریں، خود سے پریم کریں۔ پیرنٹس سے لو کرنے سے پہلے آپ خود سے پریم کریں، خود سے محبت کریں، اور خود سے محبت کرنے سے پہلے پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اگر پروفٹ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کا لگاؤ ہے، تو آپ خود سے بھی محبت کریں گے، پیرنٹ سے بھی محبت کریں گے، اپنے فیملی ممبر سے بھی محبت کریں گے، اور اس کے بعد سماج سے بھی محبت کریں گے۔ اور پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے مطلب کب، کیا، کیسے، کہاں، کتنا بات کیا جائے، یہ جانکاری لینا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ نرمی اختیار کریں، ادب، احترام، بڑوں کا ادب، چھوٹے سے محبت کرنا سیکھیں۔ لیکن کیسے پہچانیں گے بڑا کون؟ جو دنیا میں پہلے آیا وہ بڑا ہے، اس کا ادب کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ان سے بھی بڑا کون ہوگا؟ جس کے پاس تعلیم ہے، علم ہے، نالج ہے، تو اس کا بھی ادب احترام کرنا ہماری آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ اور اس سے بھی بڑا کون؟ جو پرہیزگار ہو، یعنی تعلیم رکھتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو، پرہیزگار، اس سے بڑا۔ اس سے بھی بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ تقوی والے سب سے بڑے، یہ ہر کسی کے سامنے نہیں رہتے، ہر کسی سے اب نہیں ملاقات پاتی، تقوی والے۔ تو اللہ محبت کس سے کرتا ہے؟ جو پرہیزگار ہو، جو تقوی والا ہو۔ تو آئیے آج سے ہم اور آپ بھی کوشش کریں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ ہاں، اگر آپ واقعی خود سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر کی عیب دیکھنا ہے، کمی دیکھنا ہے، اور اس کمی کو دور کرنا ہے، اور دوسرے کے اندر اچھائی دیکھنا ہے، اور اس اچھائی کو اگر آپ کو پاس نہیں ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لیجئے، گرہن کر لیجئے۔ آپ دوسرے کے اندر کی اچھائی دیکھیے، اسے اپنے اندر رکھ لیجئے، اور دوسرے کے اندر برائی آپ کو دیکھنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، ایک شرط پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے کے اندر عیب یا برائی، جیسے آپ بڑے ہیں، آپ سے چھوٹے ہیں، ان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بندہ غلطی کر رہا ہے
नहीं होना चाहिए, इससे बेहतर होना चाहिए, तो आप सबके सामने नहीं, उसको अकेले जाके बताएं, अगर ऐसे करेंगे तो बेहतर होगा, ऐसे करेंगे तो आपके लिए भी फायदा होगा, सबके लिए फायदा होगा। उसको फैक्ट चीज बताई जाए, रियलिटी बताई जाए, प्यार से, इखलास से, मोहब्बत से, के लोन में, ना कि चार लोग के बीच में। अगर चार लोग के बीच में आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मतलब आपको तरीका नहीं है, मेहनत नहीं बताने का, समझाने का। समझाना अच्छी बात है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, कितना समझाना चाहिए, ये जिस दिन आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाएगा तो जानिएगा हम कुछ बेहतर हो रहे हैं और लोगों को बेहतर बना सकते हैं। और नहीं है तो कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आप उस काबिल हो जाएंगे। हमेशा ऐप देखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ है जल्दी समझ में नहीं आता है, गलतियां समझ में नहीं आती हैं, हमको देखने में लगता है वाकई ये हमारे नज़र में गलत है, लेकिन कभी कभी सामने वाला पढ़ा लिखा समझदार है तो कुछ गलत रखता है, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट अच्छा भी दिखता है। जरूरी नहीं है पुट ऑन द स्पॉट तुरंत आपको उसकी बेनिफिट दिख जाए, अच्छा ही दिख जाए। कुछ चीजें बाद में उसका इफेक्ट पड़ता है, बाद में दिखता है इसका कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान। लेकिन वही देख सकता है जिसके अंदर उस चीज के बीच में तालीम है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वही आगे के फायदे के बारे में जान सकता है और नुकसान के बारे में भी जान सकता है। तो हमेशा खुद को बेहतर बनाएं, लोगों को भी बेहतर बनाएं। अपनी जिंदगी को हमको अगर बेहतर बनाना है, हमें क्या करना है? लिव, TLL, लिव। अगर बेहतरीन जिंदगी चाहते हैं तो लाफ, हंसना या मुस्कुराना सीखना चाहिए, और हंसना मुस्कुराना चाहते हैं तो लव, प्रेम करना सीखिए। प्रेम कब करेंगे? जब आपको तालीम होगा कब, कहाँ, कितना, कैसे ये बोलना चाहिए, कब, कहाँ, कितना, कैसे करना चाहिए, तब आप लव कर सकते हैं। और लव दूसरे से करने से पहले खुद से लव करें। अब खुद से लव करने के मतलब है कि जब आप अच्छी चीजों को अमल करते हैं, उस पे फॉलो करते हैं और बुरी चीजों से आप बचते हैं, तभी आप खुद से लव करते हैं। अदरवाइज आप कभी उम्मीद मत करिएगा आप खुद से लव करते हैं। जब आप अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं और खुद को बचाते हैं, तो आप अच्छे काम, आप खुद से लव कर रहे हैं। अगर नेक काम नहीं है, अच्छे काम नहीं है, खुद को लव से नहीं, तो खुद से आप लव नहीं कर सकते हैं। तो अगर खुद से लव नहीं करेंगे तो दूसरे से कैसे पॉसिबल हो सकता है? पहले खुद से लव करें, आफ्टर दैट पेरेंट्स से लव करें, पेरेंट्स लव करने के बाद अपने फैमिली मेंबर से लव करें, लव करने के बाद अपने सोसाइटी, समाज से भी लव मोहब्बत करें। और ये कैसे है? हम तो बड़े खुशनसीब हैं जो कि प्रॉफेट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया। उनके ही नक्शे कदम पे हमको चलना है, सीखना है, अमल करना है। जिससे मना कर दिए उससे मान जाना है। जो करने के लिए हुक्म दिया गया वही हमें और आपको करना है, वही अपने जुबान से बोलना है। और भ्रम और शिकवा, शिकायत से पनाह मांगे, उससे दूर रहें। हकीकत जानने की कोशिश करें, फैक्ट जानने की कोशिश करें। जिस दिन आप हकीकत, फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे, आपको किसी प्रति नफरत, हसद, जलन, सारी चीज नहीं होगा। अगर ये चीज आपके अंदर आ रही है, किसी चिढ़ हो रही है, किसी से नफरत हो रही है, मतलब आप कहीं कि ना कहीं हकीकत, रियलिटी से महरूम हैं, नहीं जानते हैं। और जानना हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। समझने की कोशिश किया जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। लव, प्रेम, प्रेम क्या होता है?
प्रेम यानी लव एक गहरा भावनात्मक व्यक्तिगत अनुभव है जो स्नेह, जुड़ाव और प्रभाव पर आधारित होता है। टाइप्स ऑफ लव यानी प्रेम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी ले जाए। इरोस रोमांटिक या शारीरिक आकर्षण से जुड़ा प्रेम। फिलिया दोस्तों और साथियों के बीच गहरा और सच्चा स्नेह। स्टोर्स परिवार और माता पिता बच्चों के बीच का स्वाभाविक और गहरा लगाव। अगापे मानवता, प्रकृति या ईश्वर के प्रति बिना शर्त प्रेम। प्रेम की भूमिका। गहरी परवाह, सामने वाले की खुशी और भलाई की प्राथमिकता देना। जुड़ाव, किसी के साथ सुरक्षित और सहज महसूस करना। शायरी और गीत, शब्दों के माध्यम से भावनाओं का इजहार करना। कुरान में प्रेम मानवीय और दिव्य भावनाओं के व्यापक दायरे को समाहित करता है। यह मुख्य रूप से हुब यानी गहरा स्नेह, वद यानी निरंतर सहायक प्रेम, जैसे मूल शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अल्लाह का दिव्य प्रेम। कुरान में अल्लाह को अल वदूद बताया गया है, यानी अत्यंत प्रेम करने वाला, जो कि कहा गया माँ से 70 गुना ज्यादा रब ताला यानी खुदा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। सोच लीजिए, माँ छोटी सी चोट लगने तड़प जाती है, तो उससे 70 गुना ज्यादा एक रब अपने बंदों पे मोहब्बत करता है, बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह नेक काम करने वालों से प्रेम करता है, और नेक काम करो। बेशक अल्लाह नेक काम करने वालों से प्रेम करता है। अल्लाह पश्चाताप करने वालों से प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। निस्संदेह अल्लाह उन लोगों से प्रेम करता है जो निरंतर पश्चाताप करते हैं, और उन लोगों से प्रेम करता है जो स्वयं को पवित्र रखते हैं, पाक रखते हैं, यानी जो इस्तग़फ़ार करता है, जो